and family, Samuel Bhutta and family, Aslam Techan and family, Ashik Masih, Shanaya Shakil and family, Mansoor Asghar Bhatti family, Mr. and Mrs. Jayasee Gill, Sunil Hafiz, Sonam Hafiz, Nida Hafiz, Safiyan Hafiz की शुक्रगुजारी खुदा की नज़र की जाती है। ज़ाहिदा बही एंड फैमिली शाज़िया और बशारत की शिफा के लिए दुआ करते हैं। शुक्रगुजारी खुदा की नज़र करते हैं मिस्टर एंड मिसेस इरशाद एंड फैमिली, सेबेस्टियन जॉनसन, एरन एंथनी की शिफा और शुक्रगुजारी, जावेद अख्तर एंड फैमिली, एल्बर्ट परवेज़, मारिया, रोज और सैमुअल की शुक्रगुजारी खुदा की नज़र करते हैं। यूक्रेन फतह के लिए बल्कि जंगबंदी के लिए अमन और शांति के लिए दुआ की जाती है। शुक्रगुजारी खुदा की नज़र करते हैं जोसेफ बर्नार्ड एंड फैमिली, फोसिया शमाम एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस महबूब जॉर्ज एंड फैमिली, अनबिया स्लातिया and family, Daim Ahmed, Joel and family, Ishaq Masih, Irfan Sardar, Sardar Fikidar, Sunita and कि हम खुदा इनकी शुक्रगुजारियों को मंसूर और मकबूल ठहराए, इन्हें अपने नाम फासत में रखे और हर तरह की बरकत से वासे। और आज की इबादत में मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ की जाती है। कमाल मसीह, बदरस, ज़ैनब बेबी, भूटा मसीह, मिस्टर एंड मिसेस दर्शन दरवेश, रहमत मसीह खोकर, ट्रेसा महंगा, बगीचा मसीह एंड नसीम बेबी, मिस्टर एंड मिसेस नजीरा एंड जीता मसीह, मिस्टर एंड मिसेस अनता ग्यारह, लाला काला, भुट्टा खान, मुश्ताक भुट्टा, हफीज सैमुअल एहसान एहसन मुश्ताक, मिस्टर एंड मिसेस हमीदा रशीद गिल, अनवर दुर्गल, आशिक मसीह, मदीन जेम्स, मिस्टर एंड मिसेस क्लारा सैमुअल फसल, इकबाल बेगम, मिस्टर सैमुअल फसल, रफीक मसीह, फराज जुनैद, बाबू सैमुअल, रूडा मसीह, हमीदा बेबी परवीन, अकबर परदेसी, आसिया बेबी और मिस्टर एंड मिसेस यूसुफ भट्टी, नसीरा बीबी जिनके आज बरसी है, मिस्टर एंड मिसेस नसीर आलम, मकबूल शॉन, फिलिप जे कैसर, यूनस चौहान, रानी इमरान, कोबन अनैत, वकास अनैत, मिस्टर एंड मिसेस बरकत मसीह कि खुदाए तमाम की बचती फिर सीधों को मुआ करे, इन्हें अपने मुकद्दसों और वसीलों में जगह अदाई करवाए। और तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि मेहरबानी से थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, बेशक खड़े होकर एक एक कदम आगे हो जाए और फिक्र नहीं करना। हमने छत पे भी इंतजाम किया है, शाम में आने वगैरह लगे हैं और बाहर भी सेहत में भी इंतजाम है। अगर मेहरबानी से खड़े होकर एक एक कदम आगे आ सकते हैं, बड़ा अच्छा, बहुत शुक्रगुजारी होगी आपकी।
تیرے بیٹے یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دے کر نئے اور اپنی بھیڑ کو مستقل بنیادوں پر قائم کیا. اپنے رحم و کرم سے ہمیں مقدس بنا اور ہمیشہ ہماری حمایت کر. اسی ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. اسی میں جو آج کی عبادت کے 3 اہم حصے ہوں گے: عبادت کلام، صلیب کی تعظیم اور عبادت شراکت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی عبادت کا آغاز ہم نے دعا سے کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کل رات سے ہماری عبادت کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ہفتے کی شام تک رات کی عبادت تک ایسے چلتی رہے گی. اور اس عبادت کو سہ روزہ عبادت کہتے ہیں کہ 3 دن پاک کلیسیا تمام ایماندار دعا کی حالت میں رہتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے گرجا گھروں میں، اور جہاں کہیں بھی وہ کام کرتے ہیں ایک عوامی ماحول میں ساری چیزیں سر انجام دیتے ہیں. آج خدا یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر قربان ہوتا ہے. آئیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آج کی اس عبادت میں شامل ہوں اور خدا یسوع مسیح کے مرنے اور اس کی قربانی پر غور و خوض کریں کہ آیا اس کی قربانی سے میں نے اپنی زندگی میں نجات حاصل کی کہ نہیں. وہ صلیب پر ہماری خاطر قربان ہوا. آئیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اسی ماحول میں قائم رہتے ہوئے خدا کے کلام کی روشنی سے منور ہوں اور سمجھیں کہ اس کا مرنا ہماری زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے. بڑی جائے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عشایا نبی کا صحیفہ اس کا 52 باب 13 آیت سے 53 باب 12 آیت تک. دیکھو میرا خادم گرومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا. کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کومبل کی طرف منہ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانی. اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں. اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. حقیر اور آدمیوں سے متبرک، مدرناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں. وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کو کچھ قدر نہ کی. یقیناً اس نے ہماری بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے. حالانکہ ہم اسے مربوط سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہمارے ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا. ہماری سلامتی کی تدبیر اس پر تھی اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند ہم سب کی بدی پر اس پر ڈالا. اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا. وہ ذبح کیے ہوئے بھیڑ کی مانند اور برہ کی مانند بال اترنے والے کے سامنے پیش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا. گرفتار کرنے والوں نے فتویٰ دے کر ان بال اسے اپنے لے لیا. اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ عرض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا. اور انہوں نے شیروں کے سر سے اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اس کو قبر میں رکھا. اگر اس نے کچھ ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے. یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذکر کیا. وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے اور خداوند کا ارادہ اس کے ساتھ کامیاب ہوگا. وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے افزودہ ہوگا. میرا صادق آدم تیروں کو صادق ٹھہرائے گا اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا.
اس لیے میں بطیروں کو اس کا دن اس کا حصہ کروں گا اور بے شمار لوگ اس کی ہمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی اور وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ بس اس نے بطیروں کے گناہ اٹھائے اور وہ بد کرداروں کا شافی ہے۔ پاک کلام کو پڑھیں اور سنے جانے کا خدا کرے۔ اور اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 4 باب 14 سے 16 اور 5واں باب 7 سے 9 آیات پر۔ اے بھائیو، جب کہ ہمارا ایک ایسا قائم اعظم ہے، یعنی یسوع مسیح ابن خدا، جو اخلاق سے گزر گیا ہوا ہے، اور ہم اپنے اقرار پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہمارا قائم اعظم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ بس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے اور فضل حاصل کریں۔ اس نے اپنی بشریت کے قیام میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کی، جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خدا یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ بمطابق مقدس یوحنا۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ پانی قدموں کے پاس گیا جہاں ایک بات تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشالوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر ہونے کو تھا آگے بڑھا اور ان سے کہا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، اور چونی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب اس نے ان سے پھر پوچھا، میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ میں ہی ہوں، بس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ میں ہی ہوں، بس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ جو تو نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا۔ تب شمعون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا داہنا کان اڑا دیا۔ اس غلام کا نام ملکس تھا، مگر یسوع نے پترس سے کہا، تلوار میان میں کر۔ کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبادار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھا اور پہلے اسے حرام کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس فرض کا قائم اعظم قیافہ کا سسر تھا کہ وہی قیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی، قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ مگر شمعون پترس اور ایک اور شاگرد بھی یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور اس شاگرد اور قائم اعظم نے جان پہچان کی، اور وہ یسوع کے ساتھ قائم اعظم کے صحن میں گیا۔ لیکن پترس باہر دروازہ پر کھڑا رہا۔ تب وہ دوسرا شاگرد جو قائم اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پترس کو اندر لے گیا۔ تب اس دربان لوڈی نے پترس سے کہا، کیا تم بھی اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ غلام اور پیادے جانے کے سبب سے کوئلوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تاپتے تھے، اور پترس ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ قائم اعظم نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کے بابت سوال کیا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، میں نے اعلانیہ دنیا سے باتیں کی۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور ہیکل میں تعلیم دی، جہاں سارے یہودی جمع ہوتے اور پوشیدگی میں کچھ نہیں کہا۔ تو مجھے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جنہوں نے مجھ سے سنا ہے۔ میں نے ان سے کیا کہا؟ دیکھ، ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ باتیں کہی تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کو تماچا مار کر کہا، تو کہنے اعظم کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں نے غلط کہا ہے تو اس غلطی پر گواہی دے، لیکن اگر ٹھیک کہا ہے تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ حنان نے اسے پتا ہوا کہ قائم اعظم کے پاس بھیج دیا، اور شمعون پترس کھڑا تاپ رہا تھا۔ پس اس سے کہا گیا، کیا تو اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟
اس نے انکار کیا اور کہا मैं नहीं हूँ। کہ قائد اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے جو اس شخص کا رشتے دار تھا جس کا کان پترس نے اڑا دیا تھا کہا क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? تب پترس نے پھر انکار کیا اور انہیں باندھ دی۔ تب یسوع کو قیافہ کے پاس سے قلعہ میں لے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہو بلکہ قضا کھا سکیں۔ اس لیے پیلاطس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پیلاطس نے ان سے کہا تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہودیوں نے اس سے کہا ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزا دیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کس موت سے مروں گا۔ تب پیلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے جا کے اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے۔ پیلاطس نے جواب دیا کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے۔ تو نے کیا کیا؟ یسوع نے جواب دیا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پیلاطس نے اس سے کہا کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا۔ پیلاطس نے اس سے کہا حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہاری دستور ہے کہ میں فصح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ پس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دو؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا اس کو نہیں بلکہ بارابا کو۔ اور بارابا ایک ڈاکو تھا۔ تب پیلاطس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور انہوں نے اسے تمانچے مارے۔ تب پیلاطس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ پس یسوع کانٹوں کا تاج رکھ کے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور پیلاطس نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا سلیب دے سلیب۔ پیلاطس نے ان سے کہا تم بھی اسے لے جاؤ اور سلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا ہماری ایک شرح ہے اور اس شرح کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پیلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈر گیا اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پیلاطس نے اس سے کہا تو مجھ سے نہیں بولتا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے سلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس پر پیلاطس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، مگر یہودی یوں کہہ کر چلاتے رہے
अगर अपने साथी को छोड़ देता है तो तू कैसे का फैसला नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसे का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्शे मुखलिफ या इब्रानी में जबत्ता कहलाता है अदालत में बैठा। ये फसा का दरिया था तकरीबन 6 घंटा और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे शहीद दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार कायनों ने जवाब दिया, कैसे के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी स्लीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो मुखरी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुल्कार कहते हैं। और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसे उसके साथ 2 और को दी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिख कर स्लीब पर लगवा दिया। उस पर लिखा था यीशु नाज़री यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया। हर सिपाही के लिए एक हिस्सा और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना उठाएं बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वह रिश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर पूरा डालते हैं। पर सिपाहियों ने ऐसा नहीं किया और यीशु की स्लीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हलफाई की बीवी मरियम और मरियम मजदी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास कर देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। उसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर सोफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका किया तो कहा, तमाम हुआ। और सर झुकाकर जान दी। आयन साहब अपने खुदावंद की सलीबी मौत पर घुटने टेकें और चंद लम्हात के लिए खामोशी में दुआ। दुआ का अमल पिलातुस से अर्ज की, पुराने तोड़ जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबल को सलीब पर ना रहे। सबत का वो दिन उदास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की और जो उसके साथ मसरूफ हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी। मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर को खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये रिश्ता पूरा हो कि उसकी एक घड़ी भी तोड़ी न जाएगी। फिर एक रिश्ता
कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेड़ा है। बाद यूसुफ नामकी ने जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त अर्ज की कि यीशु की लाश को ले जाए और पिलातुस ने इजाज़त दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया और निकोदेमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मूल और ओक गिरा हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबू के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहाँ जिस जगह की उसे सीट दी गई थी एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था, पर चूंकि ये कब्र नजदीक थी उन्होंने यहूदियों के तहरीर के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। अंजीर मुक़द्दस के वसीला से हम सब की ख़ज़ाए माफ़ की जाए। उसी में तो आज हम सब ने एक बहुत बड़े भेद पर गौर किया है और अंजीर मुक़द्दस में हमने उस सारे वाक़े को सुना है कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह गतसमनी बाग से पिलातुस के कले में आते हैं और उस कले से कलवरी तक का सफर करते हैं। कलवरी पर कुर्बान होकर अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपा और फिर उसको दफना दिया जाता है। उसी में जो खुदा यीशु मसीह की डेथ ऑफ क्राइस्ट एक ऐसा भेद है जिसको समझना बड़ा लाज़म है। अगर मैंने यीशु की मौत को नहीं समझा तो मैंने कुछ नहीं समझा। यीशु क्यों मरा? हर साल यीशु मरता है। कौन से दिन मरता है? कब मरता है? हर साल यीशु जी उठता है। कब उठता है? हर साल यीशु अज़ियत में से गुजरता है। कौन से दिन? हाँ, ये भी गुड फ्राइडे। लेकिन ये तीनों वाक़यात सिर्फ साल में एक बार नहीं होते, हर रोज होते हैं। सिर्फ हमने कलवरी ढूंढनी होती है कि किस कलवरी पर और किस जगह पर वो अपने आप को कुर्बान कर रहा है। एक तो उसने कुर्बान किया अपने आप को कलवरी पर, हर रोज वो कहां पे कुर्बान करता है अपने आप को? शाबाश, यहां से आवाज आई अल्तार पर। अल्तार कहां पर होता है? हाँ, चर्च में होता है। और चर्च कहां पे होता है? मक्का कॉलोनी में, सेंट मेरीज में भी, जहां पर सिस्टर्स फादर रहते हैं, उनके घरों में छोटे चैपल हैं, वहां भी अल्तार है। हमें साल बाद यीशु की अज़ियत, मौत और जी उठने का अमल दोहराना होता है या हर रोज दोहराना होता है? ये डिपेंड करता है जो इस अमल को, इस सारे भेद को समझ आता है, वो हर रोज अल्तार ढूंढता है, साल के बाद नहीं ढूंढता। जो जान लेता है कि मेरा खुदावंद क्यों मरा, मेरे खुदावंद के मुंह पर क्यों थूका गया, मेरे खुदावंद को ठट्ठों में क्यों उड़ाया गया, मेरा खुदावंद क्यों इतनी जिल्लत की मौत सलीब पर मरा। और लोग उसके मरने के बाद कहते हैं इसकी टांगें भी तोड़ दो, थोड़ी बहुत जान है तो भी काट छो। फिर कंफर्म करने के लिए नेज़े के साथ उसकी पसली को छेदा जाता है। डर, खौफ कि जिसने मुर्दों को जिंदा किया कि जिंदा ना हो जाए, यहां पे जो कुछ है आखिरी दम तक कोशिश करो ये मर जाए।
लेकिन यीशु मरकर दफन होकर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठता है। उसकी जिंदगी, उसकी अज़ियत, उसकी मौत और उसका जी उठना मेरी जिंदगी में कितनी हलचल मचाता है। हलचल उनकी जिंदगी में होती है जिसे समझ जाते हैं कि मेरा यीशु मरा, मेरा यीशु मरा। मैं आज आपसे पूछता हूं, मैं सुबह वाला पूछा गया आपने, वाई, क्यों क्यों तो मरा? तू तो खुदावंदों का खुदा है, तूने तो मुर्दों को हुक्म दिया, तलीता कम में मुर्दे जी उठे, तूने अंधों की आंखों को हाथ लगाया, वो देखना शुरू हो गए, तुमने इतने हजार लोगों को रोटी खिला दी, तूने गुनाहगारों के गुनाहों को माफ कर दिया, तू सब कुछ करता रहा जो दुनिया के लिए नजर में कभी नहीं देखा गया। तूने वो सब कुछ किया, लेकिन तू मरा क्यों? क्यों तूने अपने आप को हवाले कर दिया? इसी वजह से ये समझना बहुत लाजमी है। अगर मैं नहीं समझा कि मैं क्रिश्चियन क्यों, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कल रात की इबादत सिस्टर्स वहां पे थी, और जब एक जगह पे इबादत होती है तो वो तसलसल होता है, वो स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं, और मुझे अभी बयान करना पड़ेगा कि यीशु ने शागिर्दों के पांव क्यों धोए। कोई बता सकता है क्यों धोए यीशु ने शागिर्दों के पांव? मैं कल आगे से लड़ाई होगी बाबे में, वो कहना मैं तुम्हारे, वो कहना मैं तुम्हारे, तो पिछले साल तुम्हारा है, कहना वाह एक दिन दाई तो फादर का हुआ है, चलना पैर को। और अंकल ब्राह्मण को अपनी आराम अदा करे, बहुत सिंपल बंदे, उन्होंने कुर्सी में बैठ के जो पैर करना एंजॉय करना, चल तो क्या हमें पता है यीशु ने पांव क्यों धोए? यीशु का हमारे साथ रिश्ता क्या है पता है हमें? यीशु हमारा क्या लगता है? अगर रिश्तों में देखें, खानदान के रिश्तों में, यीशु हमारा क्या लगता है? ऊंची आवाज में, इधर भी, हाँ जी, हाँ, मैं तो भाई कहूंगा, मैं तो सब उन्होंने अपना बड़ा भाई कहूंगा, पाजी, पापा कहूंगा। वो भाई है जिसने मुझे और आपको बताया कि मेरा बाप भी तुम्हारा बाप है, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहनें हो। और मैं इसलिए स्लीप पर चढ़ा ताकि मेरे छोटे बहन भरा भी दूसरे वास्ते जी कुर्बान। बाप मौजा दिया दे बाप हुए, अपने सिर पे होंगे बढ़िया मौजा। कौन करेगा? अब्बा। कौन जाएगा? अब्बा। दुख सुख से कहने बोलेगा अब्बा जाएगा। अब्बे का कार होना बड़ा लाजमी है। जो अब्बे नहीं रहते वो घर से रौनक भी नहीं रहती, क्योंकि अथॉरिटी होती है जो घरों को घर बनाती है। और हमारे बाप बुजुर्ग हो, चाहे कहीं आ जा ना भी सके, लेकिन उनकी मौजूदगी इतना सुकून देती है, इतना सुकून देती है, इतना कॉन्फिडेंस देती है, इतनी प्रोटेक्शन देती है कि अब्बा का है, अब्बा जी का है। बाप यीशु ने सिखाया वो बाप है, हम उसके बहन भाई हैं। यीशु जिस बादशाह की बात करता है कि तुम सब मेरे बहन भाई हो, और वो हमारा आसमानी बाप मां से जब मेरा गला बड़ा कर दुआ कर करके आपको मुझे खांसी आए। चलो
और दूसरा नाराज हो गए तो सब कुछ गवा दो वो क्या करता है। और ये दुनिया के रिश्ते हैं। यीशु क्यों हमें भाई कहता है? या तो भाई भाई के केयरिंग करता है। जहां खानदानों में हम एक दूसरे का, जैसे ही हमारी शादी होती है, भाइयों में दूरियां होनी शुरू हो जाती हैं, बहनों भाइयों में दूरियां होनी शुरू हो जाती हैं, और दूसरे अपने बच्चों को बच्चे कहते हैं, दूसरों के बच्चों को बच्चे, रिश्तों के नाम बदल जाते हैं, कजन बन जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यीशु आज हमारा खुदान अपने बहन भाइयों के लिए जमीन पर कुर्बान हो रहा है। यीशु तमाम चीजों को मुकम्मल कर रहा है, खुदा की उस सोच को मुकम्मल कर रहा है जो उसने अपनी सोच इब्राहिम को दी, और इब्राहिम खुदाए वाहिद को पहला मानने वाला हमारा ईमानी बाप है, जिसने वाहिद खुदा की पहचान की। वाहिद खुदा ने जिस पर अपने आप को जाहिर किया और उसे कहा कि इब्राहिम तेरा खानदान मेरा खानदान होगा, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे, और इब्राहिम को खानदानी बरकत दी गई। इब्राहिम का कोई भाई नहीं बल्कि उसका भतीजा लूत उसके साथ चला, और लूत को उसने भाई कहा अपने भतीजे को। और जब लूत के घराने पर खुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ तो इब्राहिम की सोच देखे, खुदा से डील कर रहा है, कह खुदावन अगर तू इस शहर को बचा सके तो बचा। खुदा कहता इन्होंने गुनाह किया है, अज़ाब इन पर नाज़िल होगा। इब्राहिम खुदा से डील करता है, खुदा अगर 10 होते बच नहीं सकते, अगर 9 8 4 3 2 होते एक को भी नहीं। वो अपने भाइयों को, अपने लोगों को बचाना चाहता है, उस रिश्ते को, उस ऐब को जो खुदा ने उसके साथ बांधा, वो खानदानी ऐब है, उसको बचाने की कोशिश करता है। और फिर हम आकर मूसा की जिंदगी पर देखते हैं कि खुदा ने उन्हें मुल्क मिस्र से निकाला और वादा की सरजमीन में पहुंचने तक 40 साल वो भटकते रहे, 40 साल भटकते रहे। और कोहे सीना के दामन में जब वहां से निकलकर वहां पर आए, खुदा के पहाड़ के दामन में अपने डेरे लगाए। मूसा पहाड़ पर जाता है, खुदा से अहकामात और उसकी कवानीन और कज़ाएं लेने। नीचे लोग हारून को कहते हैं मूसा मर गया है, तू अभी हमारी नामनवारी कर, सोने के इस बैल की पूजा करने में हमारी मदद कर। खुदा नाराज हो जाता है, खुदा कहता है मैं इन पर अपना अज़ाब नाज़िल करूंगा। मूसा फिर खुदा से डील करता है, खुदा तेरी लोग में अगर ये मर गए तेनू वाहिद खुदा हूं, खुदा की इबादत कौन करेगा? तुझे कौन खुदा कहेगा? कौन तेरी इबादत करेगा? तू रहम कर। और मूसा अपने भाइयों को बचा लेता है इंतजार करके, और खुदा अपने गजब से बाज रहता है। लेकिन खुदा का गजब टला नहीं। वादा की सरजमीन में आकर भी लोग खुदा की नाफरमानी करते हैं। कभी बाबरी आकर उनकी पटाई कर रहे हैं इस्राएल की, कभी अशूरी आ रहे हैं, कभी ईद गिर्द की कौमें उनको तहजीब का निशाना बनाती हैं,
उनकी बेइज्जती करती है, और जब दुखों में जाते हैं फिर कहते हैं तू लश्करों का खुदा है, हमारी मदद को चलता। यहोवा तेरे पुकारता था मेरे वक्त छेती आ। क्यों? खुदा उनसे नाराज होता है क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को एक दूसरे का प्यार नहीं किया। आज दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कौमों में एक कौम है, और वो कौन सी है? इस्राएल। क्यों है वो इतने स्ट्रॉन्ग? आए इस पर गौर करते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा मुतजस्सद होकर आता है, किस मजहब में आता है? जुडाइज्म, यहूदी, शरीयत के मताहब, और वो तमाम कवानीन कज़ाएं अदा करता है, लेकिन उनको ये बताता है कि ये प्यार का रिश्ता, राबता जब दूर जाता है खानदान बर्बाद हो जाते हैं। भाई भाई आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे का नुकसान करना शुरू करते हैं, वो खानदान तबाह हो जाते हैं। वो खानदान सुकून इत्मीनान से महरूम हो जाते हैं। चाहे जितने मर्जी अमीर हो, खुशियां नामुकम्मल है। खुशियां तब ही होती हैं जब पूरा खानदान सेलिब्रेट करे। खुशी तब ही होती है जब सारे एक होकर खुशियां मनाए। कल्ला बंदा कभी जश्न मनाता हो तो बंदा पागल हो गया, एक करंट है कल्ला ही। यीशु अपने बहन भाइयों के लिए सलीब पर कुर्बान होता है। Why Jesus died? यीशु क्यों मरा? हम सबको मुतैन करने के लिए कि हम न मरे, मैं मर जाऊं। और ये अल्फाज कहां हम सुनते हैं? मेरा ख्याल है जहां पर प्यार की इंतहा होती है, और प्यार की इंतहा के ये अल्फाज या तो मां के मुंह से निकलते हैं या बाप के मुंह से निकलते हैं। जो भी आपको ये अल्फाज सुनाएगा आपको यकीन नहीं होगा कि चुटिया तसलियां मामा कहती हैं मैं मर जाऊं, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरी बेटी को कुछ ना हो। बाप कहता है कि मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये मोहब्बत की इंतहा है। यीशु क्यों मरा? आज उसकी मोहब्बत की इंतहा है कि वो अपने बहनों और भाइयों को मरने नहीं देना चाहता। वो मरने नहीं देना चाहता। वो अपनी मौत से हमारी मौत को खत्म करता है ताकि मैं न मरूं। वो हम में जिंदा रहना चाहता है। वो हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान होता है। आज अगर हम उसकी मौत को आंखों के सामने देखते हैं तो फिर भी एक दूसरे के साथ मुत्तहिद नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि यीशु की मौत, उसकी अज़ियत ने हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं किया। असर नहीं किया। क्यों असर नहीं किया? क्योंकि मैंने समझा नहीं। आज खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत हम सबको एक बहुत बड़ा सवाल देती है। अगर तुम मेरे साथ मेरी कुर्बानी में शामिल हुए हो तो अलग-अलग क्यों हो? क्यों हर एक बटा हुआ है? जहां पर भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुझे सुलह उनकी दिखाएं कि कितनी सुलह है हमारे खानदानों में। हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन पे आ जाते हैं, ना खेटांगे ना खेडत देंगे। मानता मैं मसीह हूं, जानता मैं मसीह को हूं, उसके बदन और खून में शिरकत करता हूं, उसकी कुर्बानी में हिस्सा लेता हूं, उसके साथ जी उठता हूं, लेकिन मैंने अपनी कौम के लिए क्या
اپنے محلے میں اپنے خاندانوں کی میں نے کتنی سپورٹ کی ہے، میں نے کتنا ان کو انکریج کیا ہے، میں نے کتنا ایک دوسرے کو پیار دیا ہے. کیا میں نے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا ہے کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یسوع کا مرنا، اس کا جی اٹھنا ہماری زندگی کو تبدیل نہیں کرے گا. اگر ہم نے اس کا مقصد نہ ڈھونڈا اور ایک دوسرے کو پیار نہ کیا جس طرح اس نے مجھے پیار کیا ہے، میں نے آپ کو کرنا ہے. ورنہ نام کے مسیحی ہوں گے، لوگ آپ کے منہ میں طوطوں کی طرح الفاظ ڈال دیں گے، ہر وقت کہتے رہیں گے پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ کیوں کر رہے ہو؟ علیحدہ چرچ کھول کے پریز دی لارڈ کر رہے ہو. ایک الطار کے سامنے نہیں جھک سکتے، ایک آواز میں اے ہمارے باپ کی دعا نہیں پڑھ سکتے. کیوں علیحدہ دکان کھولی ہے؟ کیا یہاں خدا نہیں ہے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے ایک جناب دکانیں کھول لی ہے خدا کو بیچنے کے لیے کہ میرے پاس اور جگہ شفا ہے؟ میں کہتا ہوں جہاں پر کلوری نہیں ہے وہاں پر شفا بھی نہیں ہے، جہاں پر یسوع قربان نہیں ہوتا وہاں پر زندگی بھی نہیں ہے. کہاں ہمیں لوگ بھٹکا رہے ہیں، ہمارے خاندانوں کو توڑ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو توڑ رہے ہیں. الطار یہ ہے، اس میں قربان ہوتا ہے پردہ، اور ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. نیک آپ نے کبھی کلام نہیں پڑھا لیکن یہ اچھے کلام میں بہت پیچھے ہٹ. آؤ جی بہت فرق. کیا یسوع کا مرنا مجھے اکٹھا کرتا ہے؟ اس کا مرنا مجھے اور باپ کے ساتھ ایک کرتا ہے؟ کیا میں اس کے مرنے کی، اس کی اذیت کی قدر کر رہا ہوں، یا میں ویسے لوگوں کے ساتھ مل کر باسی گرجے جانے گڈ فرائیڈے میں جاتے ہو کیا جانا، بعد پانی شربتاں ہونے لگے تھے، بعد چول بھی ملے گے. کیا آج ہوا ہے؟ آج خدا آپ کے لیے مر کر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے ہمارے سامنے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، تم ایک دوسرے کی بہنیں بن جاؤ. ہم ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. کیوں؟ یسوع نے بہت ہوئے. یسوع کہتا ہے میری بادشاہی دنیا کی نہیں ہے، میری بادشاہی آسمانی ہے. اس نے زبان میں سکھایا تیری بادشاہی آئے، کیونکہ اس بادشاہی میں بہن بھائی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. تیری بادشاہی آئے جہاں پر یسوع کا نام لیتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے یسوع نہیں بنتے، جہاں پر یسوع کے لیے بڑے بڑے بزنس شروع کر لیے ہیں، بڑے بڑے اجتماع کر لیے ہیں، بڑے بڑے کروسیڈ کر لیے ہیں، بڑے بڑے شفائیہ دوائیہ اہتمام کر لیے ہیں. کہاں ملے گا یسوع؟ یسوع وہاں ملے گا جہاں پر یسوع قربان ہوتا ہے. اگر میں نے ایک دوسرے کو قبول نہ کیا تو خدا کو بھی قبول نہیں کیا. ہمیں سکھا دیا صلیب کا نشان کیا ہے؟ نجات ہے. اب پچھلے دن میں نا واقع ہوا ہے نجات کے ضرور یہی بلیوارڈ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک رکشے والا آیا ہے جلدی جلدی سے تیزی سے، میری گاڑی کا بمپر اڑا، میں پھڑ گیا. جو رکشے میں پڑھا نا تسلیم لڑکے میں گئی تھی. میں کیا سلیم نہ لگی ہوئی تھی دن بعد 10 والا دینا سی بچ گئی ہے سلیم کے نشان. مطلب بچ گیا سلیم کے نشان. پتا کیوں سلیم لٹائی ہے تمہیں؟ میں دوسرا سوال یہ این جی لوگوں دوست کر کے نقصان کر کے یہ بتا کتنے جانی پائی تو دس میری گڈی لا جا سلیبا لا کے دنیا کا نقصان نہیں کرنا، اپنے پہنا پرانا کا نقصان نہیں کرنا، نسل انسانیت کا نقصان نہیں کرنا، بلکہ دوسروں کے لیے قربان ہونا ہے. لیکن کون ہے یہاں پہ جو سلیبیں اٹھائے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں میں کرسچن کیوں ہوں. Why I am Christian. آج یسوع سلیب پر لڑ کے کہتا ہے میں نے تم کو مقید کرنا ہے، پھر تم بڑھو گے اور دنیا کی قومیں تمہارے سامنے جھکیں گی. ایسے نہیں جھکتی، ایسے کبھی نہیں جھکتی دنیا کی قومیں، ایسے
मसीहियों में यीशु को नहीं देखेंगे। अगर आप खुद अपने बच्चों को कहेंगे यार मैं नमाज गिरजा खुले थे आज मैंने कहा दे बाहर ना पराठो खलोती यीशु के नाम में ऐसे बिजनेस छोड़ दें। कौम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दुनिया के लोग, दुनिया के यहूदी फसह मनाने आज भी यरूशलेम में जा रहे हैं। सिर्फ एक दुआ रह गई है, आके रोते हैं, माथा मारते उस दुआ को कि हमारे फौजदार ने कुर्बान गाह बनाई थी, अभी कुर्बान गाह गायब हो गई है। आप तो इतने लकी हैं जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कैथोलिक चर्च में वहां पर अल्तार है, ये टेबल नहीं है। दिस इज नॉट अ टेबल, ये अल्तार है और पर्दा इस पे ज़िबा किया जाता है। उसके लहू के बहने से हम सब निजात हासिल करते हैं। मुसीबत को सारी माएं चाहती हैं मेरे बच्चे तरक्की करें, हर बाप चाहते हैं मेरे बच्चे की पहचान हो। कैसे हो सकती है यीशु को जाने बगैर, यीशु को समझे बगैर ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? दुखों के, डिस्क्रिमिनेशन के, प्रॉब्लम्स के नीचे ऐसे दबे रहेंगे? क्यों आज भी हम वहीं पे खड़े हैं? जिन बच्चों ने डिग्रियां ले ली हैं आज के दौर में, सिवाय कॉल सेंटर को अच्छी तरह काम बता रहे हो। बहुत कम है। हम बच्चे दूसरे की सपोर्ट नहीं करते। नौजवान हमने कभी अपने आप को बहन भाई समझे नहीं। यीशु आज हम सबको कहता है एक हो जाओ। इस्राएली कौम उसने मिस्र से रहाई को हासिल की, लेकिन गुलामी की गर्द उनके पांव पर जमी हुई थी। धोखे और खुदा की नाफरमानी की गर्द फिर भी उनके पांव पर पड़ी है। आज यीशु अपने शकीतों के पांव धोकर कहता है मैं ये नफरतों की, कतूतों की, इस दुनिया के रस्मों रिवाज की गर्द को अपने 12 शकीतों के पांव से धो डालूंगा और इस गर्द के साथ आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ये गर्द धुलेगी तो मैं अपने बहन और भाई की गर्द धोऊंगा। लेकिन हमारा दुनिया का माशरा क्या कहता है कि मैंने अपने भाई पे तुहमत लगानी है ताकि नेक कहलाऊं। मैंने अपनी बहन की खामियों पर नजर करनी है ताकि लोग मेरी कदर करें। हम गर्द फेंकते हैं दूसरे पे, कीचड़ फेंकते हैं। आज लोग पानी से नहीं अपने लहू से धो रहा है। अगर फिर भी मुझ में यीशु नजर नहीं आता, उसका मरना मेरे लिए बेफायदा। अपने बहन भाइयों के लिए कीचड़ उछालना। आओ जी, ऐसे बच्चे स्कूलों में अक्सर पाए जाते हैं। जब मैं छोटा सा था, बड़ा शरारती था, माँ पे भी बड़ी कोटे खाते टीचर को भी। ये शर्त मैंने एक बच्चे के नई किताबें लेने का बड़ा शौक होता है बच्चों को। और मुझसे कर्ची पेंसिल के साथ मैंने ना लाइन वाली गई जनाब वो मेरे को दस उन्हें मेरा किताब का सेम पेपर ही फाड़ दिया। मैं फिर सारा साल लगा के पढ़ रहा है। ये एटीट्यूड मसीही है। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे, हमारे पांव पे गर्द लगी हुई है। आज वो अपने लहू से हमारी गर्द हो रहा है। मेरी की औकात है कि खुदा खुद अपने बेटे के लहू से मुझे धो रहा है। जान के जाने कि यीशु हमें प्यार करता है। यीशु हमें प्यार करता है। अगर हर एक की जिंदगी में कलवरी नहीं है तो वो मसीह नहीं है। हमारे निशान हाथों में है तीनों के। हमारे सर
कहते यार गलतियां हुई होते पा लीजिए होते अपा लीजिए होते दादा नहीं है वो साढ़े फिर भी सुलह करा देते उनकी नहीं करानी चाहिए होन किने सानू कट्ठियां करना जे होन सानू किने गां गुना कट के बिठा देना एक जगह पे किने सानू चढ़ा सुना पानी है। हर एक समझदार की कोशिश यही है, हर एक सच्चे मसीह की कोशिश यही है कि यीशु की इन बातों को मुकम्मल कर दे के बाप जिस तरह मैं और तू एक है ये भी एक हो जाए। अगले साल आप देखेंगे कि यही छोटी सी आबादी दुनिया में ऐसे सितारा बन के चमकेगी कि कहीं ऐसा मसीह प्यार हमने नहीं देखा, क्योंकि इस आबादी में एक ही अवतार है, एक ही सलीब है, एक ही पर्दा है और एक ही खुदावंद है जो अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान करता है। उठ खड़े हो, लोग इस बात के हिस्से कर रहे हैं, इस कलवरी को डिवाइड कर रहे हैं, इस कलवरी की तहसील कर रहे हैं। हमारा मसीह होने का मतलब ही यही है, खुदा में और आपस में एक होना, खुदा और आपस में एक होना। अगर एक नहीं है तो मेरी बहन कोई फायदा नहीं। अकेले रह के क्या कर लेंगे? अमीर हो जाएंगे, अमीर होके क्या करेंगे? अब दो नहीं पता। दुनिया की ख्वाहिशें जितनी मर्जी हम पूरी कर लें, लेकिन एक जो दिली ख्वाहिश होती है कि सारे बहन भरा सी बैठ के कटे खाते जो मैं सिखा दिया, जो मैं आज कर रहा हूं उसी में जो आए वो मर गया मुझे और आपको एक करने के लिए, वो मर गया मुझे और आपको जिंदगी देने के लिए। जिंदगी मसीही जिंदगी ये नहीं है कि मैं खड़ूं और मेरे दूसरे बहन भाई पीछे रह जाए। आए एक दूसरे की मदद करें, आए एक दूसरे को प्यार करें, आए एक दूसरे को शाबाश दें, छोटे छोटे कामों में एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, अपने पड़ोसियों को प्यार करें, उनके गुनाह माफ करें। अगर खुदा मेरे और आपके गुनाहों को याद रखे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम इस काबिल हैं इस चर्च में बैठ कर उसकी इबादत करें? कोई है जो कहे मैं पाक हूं, मुकम्मल तौर पर पाक हूं, मैंने कभी गुनाह नहीं किया? अगर वो मुझे और आपको ये मौका देता है कि तुम जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ, तो हमने दूसरों को जिंदगी देनी है। आए एक दूसरे के पांव धोए, इसमें तो लहू से हमें धो दिया। आए एक दूसरे के गुनाहों को माफ करें, आए उनकी अच्छी बातों को अप्रिशिएट करें। अपने नौजवान बेटों और बेटियों का मुकाबला ना करवाएं कि मेरे बच्चे इतने नामजद, मेरे बच्चे इधर नामजद, तरक्की का जब कोई भी तरक्की नहीं करेगा आप यहीं नहीं रहे। आज 15 अप्रैल मेरी बात याद रखिएगा, अगर ये हमारी बराबरी में ना आया कि हमने एक होना है, खुदा पाक की इबादत करनी है, फाइल अल्तार के सामने झुकना है, आपके बच्चे खानदानों से नहीं भागेंगे, दूसरे लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि माँ बाप से सीख लिया है, अपनी बराबरी से सीख लिया है, अपनी कम्युनिटी से सीख लिया है कि खुदा वाहिद खुदा है, एक ही उसका घर है और वो ये है। वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। आए इस दुनियादारी की बादशाह को छोड़ दें, उसकी बात से यहाँ की नहीं है जितने ये अपने बच्चों को वज़ीर आज़म बनवाते हैं, जहाँ पे अपने बच्चों को बड़े बड़े ओहदे दिलवा रहे हैं। ये एक ही रह जानी है, ये यहाँ पे रह जाएगी। आए अपने बच्चों को यीशु बनाए, यीशु के शागिर्द बनाए कि बेटा दूसरों के पांव को धोना है, दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। फिर कलवरियां मसीहाओं को कुर्बान करेगी, मारने की कोशिश करेगी, वो मर तो
अगर इस दुनिया की दौड़ में मेरा बेटा या मेरी बेटी ना दौड़ी, इस दुनिया की डिग्रियों से खुदा की बादशाह के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगी, जब तक वो यीशु में क्वालिफाइड नहीं होंगे, उसकी इंजील में क्वालिफाइड नहीं होंगे, उसकी मोहब्बत में क्वालिफाइड नहीं होंगे, उसके मिशन और विजन में क्वालिफाइड नहीं होंगे, दुनिया में सुकून नहीं होगा और ना ही हमारे घरों में सुकून होगा, ना ही हमारे घरों में सुकून। मैं बुढ़ापा में था और वहां के मेरे दोस्त खानदान कहते फादर जी आज गिनती कर रहे हमारी वहां पे कौंसल चर्च कमेटी जो थी, कहते जी थोड़े पहली बात मास संडे जी 10 पादरी आते जी बुढ़ापा थे। मैंने जी मैनू पता है 10 पादरी आते हैं बुढ़ापा चर्च में आपका लेक्चर सुनने के लिए। मैंने कहा वो क्या खुदा का कलाम सुनाएंगे अगर ऐसा अल्ताफ सीधा करके जाएंगे। आपकी दुआओं से आपके बेटे कामिल बने, वो पीछे सिस्टर्स बैठी हैं, आपकी बेटियां हैं, ये आपके खानदानों का वो तोहफा जो खुदा ने कबूल किया है और इस बात को खाली नहीं रखा, इस कलमी को खाली नहीं रखा। वो बाप से दुआ करते बाप तूने अपना बेटा कुर्बान किया ते असी भी अपने पुत्र तेरे पीछे कुर्बान कराएंगे। अपने कायनों के साथ मिलकर, अपनी सिस्टर्स के साथ मिलकर, अपने कैटेकिस्ट के साथ मिलकर खुदा की इस मोहब्बत को जो पाक तार पर जाहिर होती है अपने बच्चों से कभी ना छीने, कभी ना छीने। जब आपके बच्चों की जिंदगी में ये कलवरी और ये अतार छिप गया ताइयां दे लालेंगे, लेकिन जिंदगी का ताज शायद ना हो, जिंदगी का ताज शायद ना मिले, क्योंकि जो दुनिया के ताजों के पीछे भागते हैं, दुनिया की रोटी के पीछे भागते हैं, वो कभी शेर होते ही नहीं। एक दूसरे को खो खो के सारे कांड है, क्यों हो गया? छीना जबकि हो रही, छीना जबकि हो रही, जितना दाल लगना वही धागा ही जान। हॉस्पिटल के दरवाजे पे जाओ, वहां की पार्किंग पे जाओ, सिर्फ 200 रुपया दे दो, हमें 5 दिन पूरा मरीज को दे दे आओ जाओ तो खुश है। जिसको भी चाहे वो जो भी काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, जितने दाल लग रहा है उसी में तो ये खुदा की बात से नहीं है। आपने मक्का कुलनी में खुदा की बात से की तश्कील करनी है, बनानी है, और वो इस बात के बगैर नहीं होगी, वाहिद खुदा की इबादत के बगैर नहीं होगी, वाहिद खुदा के अजीम बेटे की कुर्बानी के में शामिल हुए बगैर नहीं हो सकती। यीशु क्यों मरा मेरे लिए? ऐसे मरा ताकि असी जिंदगी पाइए, कसरत की जिंदगी पाइए, ये सारी पाइए, हर कोई पाए, ये नहीं कि 1 2 3 4 5, सब कसरत की जिंदगी हासिल करें। इतने खूबसूरत नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बेटियां नौजवान, हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हम बड़ों ने इनको अवतार दिया। ये तब भी होगा जब बड़े भी अवतार बनेंगे। कलमियों से अपने बच्चों को नहीं डराना, कलमियों से नहीं डराना, हिम्मत देनी है कि जो कलमी पे होता है, जो कलमी पर मरता है, वो मरता नहीं बल्कि जी उठता है। आज वो मेरे लिए आपके लिए मर गया है। आए, जहां मुझे मरना था वो मर गया, जहां मेरा बेटा या बेटी ने मरना था खुदा का बेटा मर गया ताकि मुझे बचाए। क्या आप और मैं दूसरों को बचा रहे हैं? ये सवाल लेकर जरूर अपने डायरीज में लिख लें, अपना स्क्रीन सर्वर बना लें कंप्यूटर्स के, लिख लें। अगले साल आके आप देखें, आप खुद फील करेंगे मक्का कुलनी की कलीसिया कितनी मजबूत हो गई है। आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपकी बदूतें खत्म हो जाएंगी, आप तरक्की करेंगे, आप मसीह का नाम दूसरों तक पहुंचाएंगे, अंजील की बशारत देंगे। लोग कहेंगे इतने बड़े इकट्ठे रहते लड़ते उड़ते नहीं। वरना मैंने ईस्टर पे, पाक जुमों पे, पाक जुमेरात पे लड़ाइयां
लड़ाइयाँ होती देखी कि इमरान के अंदर लड़के आ गए, नवे नवे सूट पा के दूसरे सेट पाट खोल के ला गए, यार केड़ा इश्क आ गया, केड़ा बड़ा दिन आ गया। मुस्लिम जो यीशु की कुर्बानी को ज़ाया ना होने दे, और वो कभी नहीं होगी। वो अपने बाप के जलाल में भी जिंदा होगा, लेकिन मैं उसके साथ मरूंगा तो भी जिंदा होगा। क्या मैं रेडी हूं उसके साथ मरने के लिए? क्या मैं दूसरों को प्यार करने के लिए रेडी हूं? मैं दूसरों के पांव धोने के लिए रेडी हूं? क्या मैं दूसरों को रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हूं? क्या मैं दूसरों को शफाअत देने के लिए रेडी हूं? अगर मैं रेडी हूं तो यही कलीसिया, यही बेटे बेटे पूरी दुनिया को कहेंगे कि मुझ में यीशु और मैं यीशु में हूं। जिसने मुझको देखा है यीशु को देखा है, जिसने मुझको सुना है यीशु को सुना है, जिसने मेरे काम देखे हैं उसने खुदा के कामों को देखा है। मैं इस दुनिया का नहीं, मेरी दुनिया आसमानी, और वो इसी दुनिया में खुदा की बादशाह की तशकील दे रहा है, बना रहा है। आइए उसकी बादशाह में दाखिल होने के लिए वीजे लो, मेरिट पे उतरे, उसकी बादशाह में दाखिल हो। वो मर के जी उठेगा, मैं मर के जी उठूंगा। दाढ़ी लगा रहा कि मैं कितने जुमा what is going to happen to me? What is going to happen to me? बीमारियों से डर जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मेरे नाम में गुआंढी नहीं खड़े, मेरी बराबरी मेरे नाम नहीं खड़ी। भाई तेरे नाम क्यों खड़ी हुए? तू खड़ा हुआ है किसके नाम? तू खड़ा हुआ है किसी के साथ? क्यों डर खौफ में पैसे जमा कर रहे हैं, कमेटियां डाल रहे, चीजें ले रहे? कितनी हम आसाइशें ढूंढ रहे हैं, कोई आसाइश नहीं है अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है ईमान में। आज वो अपने भाइयों के लिए कुर्बान हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे भाई और बहनें हैं, हमने भी कुछ के लिए कुर्बान होना है और यीशु को जिंदा रखना है, यीशु को जिंदा रखना है। वो इसलिए मरा ताकि आपको मुझे जिंदगी दे। अगर आज उसकी मौत के बाद मुझे जिंदगी नहीं मिली तो आज अपने बच्चों के साथ इसी सलीम के सामने जरूर आए, इसी गिरजाघर में। कहीं आपके दुखों का हल नहीं होगा, कहीं पे आपको बीमारियों से छुपा नहीं मिलेगी। इसी पाक अल्लाह के सामने जो सर जमीन पर लगाएगा वो उसका खुदा होगा और वो अपने खुदा का होगा। दुख भी उसके सामने थरथरा उठेंगे, कपकपा उठेंगे, डर जाएंगे, क्योंकि ये मौत से नहीं डरते, ये यीशु के हवारी हैं, यीशु के शागिर्द हैं। आए एक हो जाएं, एक हो जाएं, यही मसीही जिंदगी है। छोटे छोटे गिरजे खोल के हर वक्त अलग अलग अपने अपने खुदा नाम के बैठेंगे, बाहर खुदा में छड़ देंगे। और बहुत सारी हमें ये बातें बताई जाती है कि वो भी खुदा की इबादत करते हैं। अगर खुदा की इबादत करते थे इतने क्यों नहीं करते? वाई नॉट हियर? ये दीवारें नहीं है, सारे देखें अपने चर्च को, ये दीवारें नहीं है, ये आपके खून पसीने की वो ईंटें हैं जिनमें आप लग लग के खुदा का घर बन गए हैं। ये आप हैं जो मिलके उस बाप का आलीशान घर बनाकर उसकी इबादत कर रहे हैं। आप चले गए कहीं ना जहां पर ईंटें रह जाएंगी, वो बरकत नहीं रहेगी। ये आप हैं जो मिलके अगर इतना खूबसूरत घर बनाया है तो ये बराबरी हर एक खानदान 300, 400, 500 जितने भी खानदान है, जिस दिन एक हो जाएंगे आसमानी हैंडल बन जाएगी। आए पाक जुमे को याद रखिए, लिख ले जाके डायरी में कि आज का पैगाम क्या था? एकता का, यूनिटी का। आज खुदा सलीब पर मरा है मुझे और आपको एक करने के। अगर ये मकसद पूरा ना हुआ तो उसी में जो हमारा ईमान लाना बेफायदा है। पौलुस रसूल यही बात तो करता है कि अगर मुस्लिम मुल्कों में से जीत नहीं उठा तो हमारा ईमान लाना बेफायदा है। आए आज भूल जाए, एक दूसरे के दरवाजे नॉक करें,
भाई प्यार माफ कर देना, मेरा धीरे देना, गलतियां हो गई तो माफ कर दे। आज ते रब ने माफ कर सकते, तू मेरा बड़ा भरा है या छोटा भरा है, तू ही अजब माफ कर। अपने बहन भाइयों से, अपने पड़ोसियों से जाके कहें, बताएं उनको माफी मांगने वाला और माफ करने वाला सच्चा मसीही है, यीशु का सच्चा पैरोकार है। बड़ा मुश्किल काम किया था, हम तो सिद्धि पा के जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपने इस रीत को लेके उस घर की कलवरी तक लेकर जाना है और वहां पे जाके हमने ईश्वर की खुशियों में, यीशु के जीतने की खुशियों में शामिल होना। मैं आपसे आपके लिए दुआ भी करता हूं कि खुदा ऐसा करने की आपको हिम्मत ताकत दे और यीशु जैसा जज्बा दे कि आज एक दूसरे के दरवाजों को नॉक करके बंद दरवाजों को खुलवाएं, मिलके आज मिलके रोजा खोले, खुदा का शुक्र अदा करें। जो कुछ आपके घरों में बना है शाम के लिए, उन्होंने कहा आज ले जाओ, आज नई जिंदगी की लहर मक्का कम्युनिटी की कलीसिया में हो। कई परेशान हो गए तो आज गोश्त नहीं बना, रूखी सूखी जो भी खुदा ने हमें दी है, हमने जिसे रोजा खोलना है वो शेयर करना है जाके, ताकि किसी को पता कि यार दूसरे का की पक जाते हैं। मैं रात को मेरे बच्चे हर रोज की खाते रहते, मेरे नाम कुमार से, वो भी मेरे बच्चे हैं, वो की खाते हैं। You are going to be wonderful ecclesia, wonderful church। अगर हमारे नौजवानों ने, नौजवान बेटों और बेटियों ने जान लिया कि अवतार एक ही है, अवतार एक, खुदा सबको ऐसा करने की हिम्मत ताकत और अपना फजल अता करे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से। मुसीबत जो अभी हम इबादत के दूसरे हिस्से में शामिल होते हैं, जो तज़ीम सलीब है, उससे पहले हम कलीसिया की मुनाजात अदा करेंगे और उसके बाद तज़ीम सलीब होगी। मेहरबानी करके, मुझे पता है गर्मी बहुत है, हफ्स भी हो रही है, लेकिन कलोरियाँ के इसी नीचे लगे हुए हैं ना, वहाँ पर सुकून है। और आए हम सब अपने सर को झुकाते हुए कलीसियाई मुनाजात में शामिल हो। कलीसिया के लिए दुआ। हम खुदा की पाक कलीसिया के लिए दुआ करें कि खुदा इसकी हिफाजत करे और तमाम रूह ज़मीन पर इसे सलामती और इत्तेहाद अता फरमाए। नीज़ हम इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हुए हर वक्त तसल्ली के साथ उसकी बंदगी करने पाए। खुदा, तूने अपने बेटे यीशु मसीह में सब कौमों के सामने अपना जलाल जाहिर किया। अपनी कलीसिया के कामों की हदायत कर, ताकि हम अपने ईमान के पाबंद रहें, हर वक्त तेरे पाक नाम को बढ़ाएं और दुनिया भर के लोगों को तेरी निजात की खुशखबरी दें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन। अजीजों, हम अपने रूहानी पापा आज़म के लिए दुआ करें कि खुदा जिसने उन्हें चुना है
उन्हें अपनी पाक उम्मत की रहनुमाई के लिए सही सलामत रखे। ऐ कादिर मुझको रब्बी खुदा, तेरे कहने पर सब कुछ बनता है। तू सब मसीहियों का हुक्म शफ़क़त से हमारे रूहानी बाप को सलामत रख, ताकि उसकी हदायत के साथ हमारा ईमान बढ़ता रहे और हम पहले से ज्यादा अच्छे मसीह बनते जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। अजीजों, हम अपने बिशप रहमान और काहिनों की कुल जमात और बाकी सब खालिदीन के लिए दुआ करें, बल्कि सब मोमिनीन यानी सारी पाक उम्मत के लिए दुआ करें। ऐ कादिर मुझको रब्बी खुदा, तेरी तरफ से रूह कुद्दस कलीसिया की हदायत करता है और उसे पाकीज़गी बख्शता है। हमारी सुन और हमारी सब की मदद कर, ताकि हम अपने बलावे के मुताबिक पूरी वफादारी के साथ तेरी खिदमत कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। अजीजों, हम उनके लिए दुआ करें जो बपतिस्मा पाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि खुदा उनके लिए अपने रहम और मोहब्बत का दरवाजा खोले। नई पैदाइश के पानी के जरिए उनके गुनाह माफ कर दिए जाएं और मसीह की जिंदगी में उन्हें शरीक करें। ऐ कादिर मुझको रब्बी खुदा, तो अपनी कलीसिया को हर वक्त नई औलाद से फलदार बनाता है। दीन की तलाश करने वालों के ईमान और समझ को तरक्की दे, ताकि वो जिंदा पानी के हौज में नए सिरे से पैदा हो और तेरे खास फर्जंदों में शुमार किए जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। मसीहियों के इत्तेहाद के लिए दुआ। अजीजों, हम अपने भाइयों और बहनों के लिए दुआ करें जो हमारे साथ मसीह को मानते हैं, कि मेहरबान खुदा अपने सब चाहने वालों को एक बनाए। ऐ कादिर मुझको रब्बी खुदा, तू बिखरे हुओं को इकट्ठा करता है, तो इकट्ठा करके उनकी हिफाजत भी करता है। अपने बेटे की पैरवी करने वालों पर नजर कर, ताकि वो सब एक ही बपतिस्मा के जरिए महसूस किए जाकर कामल ईमान और मोहब्बत के बंधन से भी एक हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। यहूदी कौम के लिए दुआ। अजीजों, हम यहूदी कौम के लिए दुआ करें कि वो हमसे पहले खुदा का कलाम पाकर हमेशा उसके पाक नाम को अजीज जानते रहें और अपने अहद के पाबंद रहें। ऐ कादिर मुझको रब्बी खुदा, तूने इब्राहीम और उसकी नस्ल के साथ नजात का वादा किया और उनसे अपना अहद भी बांधा था। मेहरबानी से अपनी कलीसिया की दुआएं सुन और पुरानी मिरास की कौम को नजात की भरपूरी में शामिल कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। हम अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए दुआ करें। अजीजों, हम अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए दुआ करें कि वो इस जहां में दिल की सफाई के साथ वाहिद खुदा की इबादत करने के बाद आखिर में हमेशा की जिंदगी पाएं। ऐ कादिर मुझको रब्बी खुदा, तुझसे मोहब्बत करने वाला इब्राहीम इस बात पर आमादा था कि अपने ईमान और सच्चाई के इजहार में अपने इकलौते बेटे तक तेरे नाम पर कुर्बान करे। अपने रहम करम से उसकी नस्ल को ये तौफीक अता कर कि तुझ वालिद खुदा पर ईमान लाकर और हर बात में तेरे कहने के मुताबिक चलकर हमारे साथ अपनी नजात में शरीक हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। उन सब लोगों के लिए दुआ करें जो मसीह को नहीं मानते। अजीजों, हम उनके लिए दुआ करें
जो मसीह को नहीं मानते कि वो रूह कुद्दस की रोशनी से मुनव्वर होकर निजात की राह इख्तियार करें। ऐ गारंटी को रब्बी खुदा, हमारे उन भाइयों और बहनों को जो खुदा यीशु मसीह को नहीं मानते, अता कर कि वो तेरे सामने नेक जिंदगी बसर करके तेरी सच्चाई तक पहुंचे। बख्शे कि हम भी प्रार्थना मोहब्बत में तरक्की पाकर तेरी जिंदगी के गहरे भेद से ज्यादा वाकिफ हो जाएं और इस दुनिया में तेरे सच्चे गवाह बने, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। आमीन। हम उनके लिए दुआ करें जो खुदा को नहीं मानते। अजीजों, हम उनके लिए दुआ करें जो खुदा को नहीं मानते कि वो अपने और जिंदगी की सच्चाई की वजह से उसे पाए और कबूल करें। ऐ रब्बी खुदा, तूने हम सबको एक ही सूरत पर बनाया ताकि हम दिलो जान से तेरी तलाश करें और तुझे पाकर तसल्ली हासिल करें। बख्शे कि हम सब लोग इस जहान की आजमाइशों और ठोकरों के बावजूद मसीहियों का तर्ज जिंदगी देखकर तेरी मोहब्बत और रहमत को पहचाने और शादमानी के साथ तुझ सच्चे खुदा और हम सब के बाप को कबूल करें, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। हम तमाम सरकारी ओहदेदारों के लिए दुआ करें। अजीजों, हम सब सरकारी ओहदेदारों के लिए दुआ करें कि खुदा उनके दिलों और दिमागों की हदायत करने वाला हो और हम सब उनकी खिदमत से फायदा उठाकर इत्मीनान और आजादी के साथ अपनी जिंदगी बसर करें। ऐ रब्बी खुदा, तमाम इख्तियारात और हुकूक तेरे ही हाथ में है और तू जानता है कि बनी हुए इंसान को क्या दरकार है। अपने कर्म से इन पर निगाह कर जो हम पर हुकूमत करते हैं, ताकि तेरे सच्चे हाथ की हिफाजत से हर जगह दीन महफूज और वतन में अमन और सलामती रहे, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। हम उन सब लोगों के लिए दुआ करें जो किसी भी मुसीबत में, परेशानी में मुब्तला है। अजीजों, अपने प्यारे बाप खुदा से दुआ करें कि वो हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे, बीमारों को शफा दे, मुसाफिरों को महफूज रखे, मजलूमों को रहाई अता करे, भटके हुओं को रास्ता दिखाए और दुनिया को फाका कशी, बीमारियों और हर तरह से बचाए। ऐ रब्बी खुदा, तू थके मानों का सहारा और मायूसों की दवा सुनता है, जो किसी भी रंज में मुब्तला होकर तेरे आगे फरियाद करते हैं, ताकि सब अपनी ज़रूरतों में तेरी मदद पाएं और तेरी उल्फत और शफ़क़त को महसूस करके शादमानी से मामूर हो जाए, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। मसीह में जो अब इबादत का दूसरा हिस्सा ताज़ीम सलीब है और ताज़ीम सलीब में सलीब लाई जाएगी, उससे कपड़ा उतारा जाएगा और उसको बुलंद किया जाएगा जो हमारी निजात है। लेकिन सलीब का भूसा जो है वो पाक शहादत के बाद होगा और मेहरबानी करके बड़ी ताज़ीम के साथ दूसरों को मौका देगा। कोई जल्दी से आना चाहता है उसको आने दें, हम लोग आ जाओ, लेकिन एक दूसरे को हम धक्का न दें, धक्का कोशिश करके किसी को धक्का लगे ही ना, एक दूसरे की मदद करें ताकि लाइनों में आकर हम पाशागत भी लें और उसके बाद सलीब का भरोसा भी लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे दरमियान से गुजरेगी, उसी तरफ हम अपना मुंह करेंगे और कायम रहेगा, देखो सलीम देखो जिसने हमें बचाया। आपका जवाब होगा, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। जिसने हमें बचाया, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। देखो सलीब देखो जिसने हमें बचाया। अभी हम सब रुले हो जाएंगे और सलीब को सिजदा करेंगे। मेहरबानी करके चंद लम्हात हम खामोशी में गुजारेंगे। उसी में तो अभी हमारी इबादत का तीसरा हिस्सा अबाद शराकत है और आज पाकमास की कुर्बानी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि खुदा यीशु से खुद हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ है। और इसलिए पाकमा कलीसिया पाक जुमेरात की मखसूस शुदा पाक शराकत होली कम्युनियन पाक जुमा के दिन इस्तेमाल करती है। अभी दुआएं की जाएगी और पाकशाकत देने वाले बड़ी ताज़ीम के साथ पाकशाकत में हिस्सा लें और पाकशाकत के साथ आपका रोज़ा नहीं टूटता। ओके, तो आप ज़रूर पाकशाकत लें। हर कोई पाकशाकत जो जिन्होंने कमेटी पास की है, जो एतराफ़ का साथ में हासिल कर चुके हैं, वो ज़रूर पाकशाकत लें। अभी दुआएं की जाएगी और हम आबाद शराकत में शामिल होंगे। और अपना हदिया निशाना और शुक्र में पेश करें। Goodbye,
को खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारी कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे विनती करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाह कुदरत उछाल हमेशा तेरी है। ऐ खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती का हाथ दो जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। ऐ खुदा के बड़े जहाँ के गुनाह उठाए जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े तू जो जहान के गुनाह को उठाए जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े तू जो जहान के गुनाह को उठाए जाता है, हमें शांति अनायत कर। और यह है खुदा का बड़ा खुदा यीशु मसीह जो सारी दुनिया के गुनाह और बोझों को उठा ले जाता है, और मुबारक हम सब जो इसी बड़ा की ज़ियादत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदा मैं शायद नहीं कि तू मेरे हाथ, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरे रूह से भाग पाएगी। मसीह का बदल खून पाशा करने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। इसलिए तो अभी क्वाइट की जाएगी और सिस्टर साहबान और मना साहबान आपके पास आएंगे। बादशाह वही थे जो हैदराबाद का सापर्मेंट हाजिर कर चुका है, बादशाह का सापर्मेंट हाजिर कर चुका है, ताकि हम एक तज़ीम के साथ खुदावंद के बदल में शिरकत कर सकें। शुक्रिया।
सिर्फ मानव से गुजारिश है कि वो आपके जगह पर बैठे। अभी इस गेट का गुस्सा होगा और इस गेट के गुस्से के बाद अपने घरों पर होंगे। जगहों पे स्लीप कर खड़े होंगे और आप स्लीप का गुस्सा लेकर अपने घरों पर रवाना होंगे। सलीब की ताज़ीम मेहरबानी करके शिक्षक साहबान और मुनाफ साहबान इनके पास लिखे हैं और हर एक उन कदमों को जरूर चुन के जाए जिन कदमों में हमें निजात की राहें बताई और जिनकी बदौलत हम खुदा के बेटे और बेटियां बने। अपने बच्चों को पूरे खानदान को जरूर सलीब की ताज़ीम के लिए लेके आए और मेहरबानी करके बड़ी ताज़ीम के साथ लाइनों में लग के हम सलीब की ताज़ीम करेंगे। तो दो सिस्टर्स यहाँ पे होंगी, दो दरमियान में, और बाबू जी आप भी जाना, आप और बाबू इमैनुअल बाहर, और ऊपर जो हमारे बहन भाई हैं या गेट के पास लाइन में जाएं और सलीब की ताज़ीम करें। और आखिर में अभी हम सो के आलम में हैं, लेकिन हम खुदावंद की तारीफ भी करते हैं, शादमानी भी करते हैं कि उसने हमारी खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। इस सारी तैयारी के लिए मैं बाबू अगस्टिन, बाबू इमैनुअल और बाबू अनवर इनको मुबारकबाद देता हूँ, और कोयल को और विकी को साउंड सिस्टम में मदद की। थैंक यू वेरी मच। मैं ज़्यादा भरपूर तालियों में इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और खसूसी तौर पर अपने पैरिश प्लीज और असिस्टेंट पैरिश प्लीज रेवरेंड फादर कैथर रोज, फादर सुनील इरफान और सिस्टर बर्नदीप, उनकी तमाम कम्युनिटी, हमारी तमाम बहनों के लिए भरपूर तालियों में इनको भी मुबारकबाद। And I wish to thank you for all your help and support here in the parish. God bless you. अभी हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आप इस दुआ में शामिल होंगे। ऐ कादिर मुतलक अपनी खुदा, तूने मसीह की मौत और जी उठने के जरिए हमें नई जिंदगी दी है। अपनी रहमत के कामों में हमारी हिफाजत कर, ताकि हम इस बात की इबादत में शरीक होकर अपनी जिंदगियों में हर वक्त तेरे सच्चे गवाह रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से ऐ मेहरबान खुदा, हम इन पाक रस्मों के साथ तेरे बेटे की मौत को याद कर चुके हैं। उसका जी उठना हमारे लिए तसल्ली और उम्मीद का बायस है। अपने लोगों को बरकत दे, हमें माफ कर, हमारा ईमान मजबूत कर और हमें हमेशा की निजात अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आज आपकी बरकत नहीं दी जाती, क्योंकि कल तक हमारी सवालत वही इबादत जारी रहेगी। अभी वो गीत गाएगी और हम सलीब की ताज़ीम करेंगे, और बाबू जी मेरा कुछ ऐलान करना चाहते हैं। कल ये समाज जो है रात 11 बजे शुरू होगी और मेहरबानी से ये आपकी बरकत के साथ शुरू होती है। फादर जी भी हमारे दरमियान आएंगे। सबसे पहले मैं माता कलोनी की सारी कलीसिया की जानब से दी वेरी रेवरेंड फादर फ्रांसिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके स्वर्ग तालियों में इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस रूप की इबादत के लिए जो उन्होंने अपना टीम के वक्त हमारे दरमियान निकाला और हमें इस रूप में इबादत से रूशनास कराया। और खास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि रात की इबादत में हर एक शख्स आपकी कहने साथ रहा। ये नहीं कहना कि अति डालने
प्यारा